ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਔਨ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਮੈਥਸ ਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 9th ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 3 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਡ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸੋਲਿਡ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਤੇ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3D ਆਬਜੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਘਨ ਤੇ ਘਨਾਭ ਦੇ, ਕਿਊਬ ਐਂਡ ਕਿਊਬੋਇਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਘਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਲੈਂਥ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਤੇ ਹਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਲੇਕਿਨ ਘਨਾਭ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਊਬੋਇਡ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਉਚਾਈ, ਲੈਂਥ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਤੇ ਹਾਈਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ, ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਉਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਊਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਘਨਾਭ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਘਨ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਘਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤਹ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6a²। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, 6 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਨਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਭੁਜਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਈਡ, 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ, 6 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 7 ਗੁਣਾ 7। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, 6 7 42 ਹੁੰਦਾ, 42 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ, 7 ਦੂਣੀ 14, 7 ਚੁਕਾ 28 ਤੇ 1 29, 294 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, 294 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਥਰਡ ਦੇਖੋ, ਭੁਜਾ ਏ ਵਾਲੇ ਘਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕੁੱਲ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ 6a², ਇਹ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 6a²। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਭੁਜਾ 6 ਸਮ ਵਾਲੇ ਘਨ ਦਾ ਆਇਤਨ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਆਇਤਨ ਮੀਨਸ ਵੋਲਿਊਮ। ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਘਨ ਕਿਊਬ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਡੱਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਘਨ ਦੇ ਆਇਤਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਇਤਨ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਲਿਊਮ, B = ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ A ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁਜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਭੁਜਾ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 6 ਸਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਤਾਂ 6 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, 216 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 216 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਘਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਤਨ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸਦਾ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, x ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਜਾ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, x ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਭੁਜਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, 2x। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਇਤਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਤਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, a ਦੀ ਪਾਵਰ 3, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਦਾ ਮਤਲਬ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਨੀਚੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭੁਜਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, 2x। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, 2x ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ, x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਨਾਲ ਤੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਕੱਟ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1, ਨੀਚੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਮੀਨਸ 1/8। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, 8 ਗੁਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਹੈ, ਫਿਰ 8 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜੇਕਰ ਘਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 150 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭੁਜਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਭੁਜਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਤਹ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁੱਲ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਕੁੱਲ ਸਤਹ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, 6a²। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, 6a² ਬਰਾਬਰ 150 ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 6 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ a² ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 150 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 6। 150 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਦੇਖੋ 6 ਦੂਣੀ 12, 3 ਬਚੇ 6 5 30, 25 a²। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ 25 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭੁਜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ, 25 ਦਾ
रूट कड्ढन ते वर्गमूल कड्ढन ते कितना आ जाएगा बेटा 5 सेंटीमीटर। तो अपने को इसकी भुजा कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बी ऑप्शन। तो ये अपना ये इन्ना क्वेश्चन है जड़ा ये आपने कितेगा 6 क्वेश्चन 6 नंबर। ठीक है जी। नैक्सट हुण अगे आपां नूं हुण घनाव दिता होया, घनाव की देखो लंबाई है, चौड़ाई है, उचाई है। सब तो पहला लंबाई लिखी होंदी है, फिर चौड़ाई, फिर उचाई। ਇਹਦੀ कुल सतह का खेत्रफल पता करो कहते। ਇਹਦੀ कुल सतह के खेत्रफल का फार्मूला होंदा बेटा, देखो ਇਹਦੀ कुल सतह के खेत्रफल का की फार्मूला होंदा घनाव की, इसका होंदा इत्थे लिखते हैं आप 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL। ये आप केड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं 7th क्वेश्चन। ठीक है जी, 7th क्वेश्चन बाद में आप इरेज कर देंगे इसमें। तो 2 मल्टीप्लाई L कितनी दी हुई अपन 8, ब्रैथ 5 प्लस फिर 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8। इन्हों आप सिंपलीफाई करना है। 2 मल्टीप्लाई देखो ये 40 बन गया, ये बन गया 40 प्लस 15 प्लस 24। इन्हों ऐड कर दिया आप तो कितना बनेगा 40 के 15 जोड़े 55, 55 च 4 जोड़े आप 59, 69 79। तो 2 नूं मल्टीप्लाई कर दो 79 नाल, कितना बनेगा 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 ते 1 15। देखो 158 सेंटीमीटर स्क्वेयर ये आंसर आ गया। आप पहला 6 क्वेश्चन ही रेज कर देंगे, उम्मीद है तुसीं 6 क्वेश्चन सारे ने कर लिया होगा, है ना। बस 2 मिनट। हाँ जी, देखो 7th क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना डी ऑप्शन 158 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है जी। तो नैक्सट है 8th क्वेश्चन, जेकर एक घनाव की उचाई दुगनी कर दी जाती है पर आधार उही रहिंदा है तो आयतन दे विच की बदलाव होएगा। हुण घनाव के आयतन का फार्मूला दस रही है बेटा मैं तुहानूं, घनाव के आयतन का फार्मूला। ठीक है, की फार्मूला हुंदा इसका घनाव का आयतन LBH। ਇਹਦਾ मतलब की है तिना की मल्टीप्लाई। तो हुण जे पहला भुजा पहला कहते घनाव की जिहड़ी उचाई है वो H है, बाद विच दुगनी करती 2H करती। ठीक है, पर आधार उही रहिंदा है। आधार का मतलब है कि उसकी लंबाई चौड़ाई है जो वो सेम रहिंदी है। तो कहते आयतन दे विच की बदलाव आऊगा, तो आप चैक कर लेने आ, इहदा भी अनुपात कढ लेने आ। अनुपात पहला अपना आयतन LBH है, बाद विच L ते B तो सेम है, H की थां ते कितना हो गया बेटा 2H हो गया। तो कैंसल कर लो, देखो L नाल L कट गया, B नाल B कट गया, H नाल H कट गया। ऊपर कितना आ गया 1, नीचे कितना आ गया 2। देखो जे उचाई है जी पहला H सी बाद विच 2H हो गई, तो जो आयतन है पहला 1 सी फिर बाद विच कितना हो गया 2 हो गया, मतलब दुगना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन की आ गया डी ऑप्शन। नैक्सट देखो 9th सम, नाइन्थ सम देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं आप। 9th सम की अपने को एक घनाव का आयतन है जड़ा 192 सेंटीमीटर क्यूब है, कहते दसो इसके आधार का खेत्रफल है जड़ा वो 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर है। तो यदा की पता करना अपने उचाई पता करनी है 9th सम के। जो घनाव होंगे ना बेटे वो बॉक्स होंगे एक इस तरह का, देखो ये बॉक्स बन गया एक। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आधार है आ देखो आधार नीचे वाला हिस्सा है ना, नीचे वाला हिस्सा जो मैं शेड कर रही हाँ, यदि देखो लंबाई तो चौड़ाई है सिर्फ, है ना, लंबाई तो चौड़ाई, लेकिन ये बन की रही है आयत बन रही है। आयत का खेत्रफल किस दे बराबर होंदा है लंबाई गुना चौड़ाई दे। तो इन्होंने कहा आपां नूं आधार का खेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर है, इसका मतलब L गुना B दी हुई आपां नूं 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो हुण ध्यान नाल देखो आधार का खेत्रफल है जिहड़ा वो एक आयत है, आपां लिखांगे आधार का खेत्रफल किस दे बराबर है L गुना B दे, जिहड़ा आपां नूं कितना दिता होया 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आयतन कितना दिता होया है, आयतन का फार्मूला की होंदा बेटा अपने को LBH। तो हुण देखो आ LB की जगह ते आपां कितना लिखांगे 24, ते आयतन आपां नूं कितना दिता होया 192 नाल की है 24 दे H। तो 24 H दे नाल की हो रहा मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड ते जाके की हो जाएगा 192 नाल डिवाइड।
तो अपने को एच कितना आ गया 192 डिवाइड बाय 24 इनू डिवाइड कर दो कितना आएगा 8 तो कैंसल होंगे 8 चौका 32 8 दिन 16 3 19 लिखो तो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो अपनी सॉरी मैंने 8 बोलिया सी ना 3 नहीं है 8 सेंटीमीटर अपनी की आ गई ऊंचाई केड़ा ऑप्शन है सी ऑप्शन। ठीक है जी ये अपना 9th सम है इस जगह तो अपन 9th सम कर रहे हैं ध्यान रखना है सबने। ठीक है नैक्सट है 10th सम देखो एक घन एक फलक अनुसार दो बराबर घनावां विच कट्टो दोनों घनावां दे विच की समान रहेगा कहते की समान रहेगा बेटे उन्होंने सतह का क्षेत्रफल तो बिल्कुल बदल जाएगा। ठीक है क्यों क्योंकि दो हिस्से हो गए तो अपने को दो फलक हो गए अलग अलग एक ही फलक की जगह से जो सेंटर चो कट किया ना उत्थे दो फलक आ गए उत्थे तो कोई है ही नहीं सीगा कोई पार्ट ही नहीं सीगा। आयतन है जो आयतन दे विच भी थोड़ा डिफरेंस आएगा। ठीक है विकर्ण भी सिर्फ की उन्होंने समान रहेगा ऊंचाई बराबर रहेगी उन्होंने केवल ऊंचाई। ठीक है उन्होंने जी हाइट है ना वो बराबर रहेगी वो नहीं चेंज होएगी। नैक्सट देखो नैक्सट टॉपिक आ गया अपने को बेलन बेलन दे विच आपां नूं की कहा पुछया सब तो पहले इन्होंने किहड़ी दो पसारी आकृति नूं घुमाउण ते बेलन बनता है तो किहड़ी आकृति नूं घुमाउण ते बेलन बनता है आयत नूं। आपां इह एक एक्टिविटी भी की सीगी कि एक पेज लै लो पेज का की बनता है अपने को बेलन बनता है ना। ठीक है तो आयत नूं घुमाउण ते एक बेलन बनता है। नैक्सट एक बेलन का अर्ध व्यास 3 सम ते ऊंचाई 7 सम है इसका आयतन की है तो हुण देखो बेलन मतलब सिलेंडर सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला की होंगे राइट डाउन पाई आर स्केयर एच तो आपां की लिखांगे पाई की जगह पर 22/7 आर आपां नूं अर्ध व्यास कितना दिता होया 3 सेंटीमीटर तो मतलब 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई एच एच कितना है 7 तो देखो 7 नाल 7 कट गया बेटा इत्थे 3 की पावर 2 का मतलब की है 9। ठीक है 9 तो 22 नूं 9 नाल मल्टीप्लाई कर दो 9 दूनी 18 18 तक 19 198 सेंटीमीटर स्केयर आ गया 198 सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नैक्सट कहते उपरों खुले बेलन की कुल सतह का क्षेत्रफल पता करने का सूत्र की है। उपरों ओपन है देखो इस तरह का बेलन होंगी है शेप ये बेलन है थोड़ा ड्रॉ करन च अलग बन गया देखो ये बेलन है यदि जी बेटे आ गोल वाली सतह हैगी यदि गोल वाली सतह देखो ये वाली गोल वाली सतह। ठीक है यदा क्षेत्रफल की होंगे 2 पाई आर एच प्लस तो जी अपनी आ नीचे अपने सतह ड्रॉ की है उपरों तो ओपन है ना उपरों तो कोई कुछ लग्या ही नहीं होया ओपन है तो नीचे वाला हिस्सा है वह तो एक ही बनता एक चक्कर यदा क्षेत्रफल की हो गया पाई आर स्केयर तो की फार्मूला बन गया इतने चेक कर लो आ बनता सी ऑप्शन इनू मल्टीप्लाई करके देखो पाई आर नूं 2h नाल मल्टीप्लाई किया 2 पाई आर एच बन गया तो पाई आर नूं आर नाल मल्टीप्लाई किया कितना बन गया पाई आर स्केयर तो अपना किहड़ा राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन। ठीक है जी नैक्सट एक बेलन का आयतन अपने को 1540 सेंटीमीटर की पावर 3 दिता हुआ है ऊंचाई 10 सम दी हुई है अर्ध व्यास अपन इसका पता करना है। देखो आयतन दिता हुआ बेटा अपन इस सवाल के अपन किसका फार्मूला यूज करांगे आयतन का ही फार्मूला यूज करांगे। ठीक है आयतन का फार्मूला यूज करके ही अपन ये सम सॉल्व करना है। आयतन का बेलन के आयतन का फार्मूला मैं हुणे तुहानूं दस्सिया की हैगा पाई आर स्केयर एच। तो 14th क्वेश्चन देखो करन जा रहे हैं आप 14th क्वेश्चन बेलन के आयतन का फार्मूला है आयतन बराबर पाई आर स्केयर एच। ठीक है आयतन अपन इत्थे दिता होया 1540 तो आप एक साइड ते 1540 लिख लेने दूसरी साइड ते देखो 22/7 मल्टीप्लाई अर्ध व्यास अपन ने पता करना एच अपन दी हुई है ना आर स्केयर लिख दो एच हैगी है 10 तो आर स्केयर इस साइड ते छड्ड के राइट साइड ते छड्ड के बाकी सारे नंबर्स नूं आपां दूसरी साइड ते कन्वर्ट कर लो तो की बन जाएगा अपने को 1540 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22 तो 10 इधर ऊपर से इधर आगे की हो जाएगा बेटा नीचे 1/10। ठीक है 1/10 ये 1 है इधर की रहेगी अपने को आर स्केयर 0 नाल 0 कैंसल कर दो 22 के टेबल 154 होता है तो ये 1 आ गया इनू कैंसल करके कितना आ गया 7 तो अपने को आर स्केयर कितना आ गया 7 मल्टीप्लाई 7
तो आर कितना आ गया बेटे 7 मल्टीप्लाई 7 का रूट, तो एक अखर बाहर कट दो तो अपने को अर्ध व्यास कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर आ गया ए ऑप्शन 7 सेंटीमीटर। नैक्सट देखो, नैक्सट 15th क्वेश्चन अपने को 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ अर्ध व्यास ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 3.5 मीटर, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 10 मीटर। ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਟੈਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਆਇਤਨ। ਚਲੋ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਬੇਲਨ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਐਚ। ਪਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 22/7, अर्ध व्यास की जगह 3.5 का स्क्वेयर लगाना है आप, है ना। तो आप इन्हू 2 बार लिख लें, 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, तो एच भी दिता हुआ 10। सिंपलीफाई कर लो इसको, तो कितना बनेगा अपने को 22/7 मल्टीप्लाई 35/10 मल्टीप्लाई 35/10 मल्टीप्लाई 10। देखो आ 10 नाल तो 10 कैंसल हो गया, तो 7 5 35, 5 दूनी 10, है ना। फिर आ 2 भी कैंसल हो गया, इस 11, तो ऊपर अपने को सिर्फ 35 ते 11 रह गया। 35 मल्टीप्लाई 11 मीनस अपने को आ गया 385 मीटर क्यूब। हम देखो लेकिन अपन इन्होंने पता करने वास्ते किहदे च कहा, लीटर दे विच पता करने वास्ते कहा। तो हुण अपने को एक फार्मूला है कि 1 किलो लीटर है जिहड़ा वो किस दे बराबर हुंदा है 1 मीटर क्यूब दे। ते फिर 1 किलो लीटर दे विच किन्ने लीटर हुंदे हैं, 1000 लीटर हुंदे हैं। 1 किलो लीटर दे विच किन्ने लीटर हुंदे हैं, 1000 लीटर, ठीक है बेटे। तो आप हुण ये मीटर क्यूब नूं लीटर दे विच कन्वर्ट करने लई 1000 नाल की करांगे डिवाइड। तो इहदा मतलब 385 नूं आपां 1000 नाल की करना है, डिवाइड करना है, तो ये लीटर दे विच कन्वर्ट हो जाएगा। मीनस 0.385 इसका आंसर आएगा, 0.385। लेकिन इसका कोई भी आंसर 0.385 नहीं है, 385 ही कला दिता होया आपां नूं। या तो यदा आंसर पूछते हैं पानी की मात्रा किलो लीटर पता करो, तो अपना आंसर 385 किलो लीटर आता है ना। लेकिन लीटर दे विच 0 पॉइंट, इसका आंसर आएगा 0.385 लीटर। तो देखो यही आंसर बनता है, सारे बच्चे राइट डाउन कर लो इसमें। नैक्सट देखो, कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है इस। नैक्सट कहते एक बेलन का अर्ध व्यास ते ऊंचाई दोनों दुगने करते तो आयतन दे विच की बदलाव आएगा। ये आप फिर अगेन तो इसी तरह करते हैं। देखो पहला ऊंचाई एच लेने ते अर्ध व्यास लेने, ठीक है, आर। फिर कहते सॉरी मैं 17 ते पहुंची है ना, 16 कर रहे हैं आप। अर्ध व्यास ते ऊंचाई दोनों को दुगना कर देना है, आयतन कितना होएगा। पहला आप इहदा आयतन का फॉर्मूला लिख लेने। आयतन का फॉर्मूला की है, पाई आर स्क्वेयर एच। हुण आप इसका की कढ़ना बेटा, अनुपात कढ़ना है। 16th क्वेश्चन कर रहे हैं आप, 16th, ठीक है। देखो पहला पाई आर स्क्वेयर एच ही लिख लिया, बाद विच आयतन कितना होएगा, पाई तो पाई रहेगा, अर्ध व्यास कहते दुगना कर दो, मतलब 2 आर कर दो। 2 आर का की बन जाएगा, स्क्वेयर बन जाएगा। ऊंचाई भी दुगनी कर दो, एच की थां ते कितनी कर दो बेटे, 2h कर दो। तो देखो की बन गया अपने को, पाई नाल तो पाई कट गया, इत्थे की बन गया आर स्क्वेयर एच, नीचे की है 2 का स्क्वेयर कितना होंदा 4, आर का स्क्वेयर आर स्क्वेयर, फिर ए कितना बनया 2 मल्टीप्लाई 2h। देखो एच नाल एच कट दो, आर स्क्वेयर नाल आर स्क्वेयर कट दो, कितना आ गया, ऊपर कितना हो गया बेटा 1, नीचे 4 दूनी 8। ਇਹਦਾ मतलब अपना अनुपात है जिहड़ा 1:8 आया। तो वॉल्यूम है जिहड़ा बेलन का, जे अर्ध व्यास की ऊंचाई दोनों डबल हो जाते तो वॉल्यूम के विच किन्ने गुना बदलाव होंदा है, 8 गुना। डी ऑप्शन, ठीक है जी। तो ये अपना 16th क्वेश्चन सीगा। इसी तरह कढ़ना होंगे आप, अनुपात रेशो कढ़नी होंगी है भी, पहला आयतन कितना है, बाद विच कितना हो जाएगा, है ना। नैक्सट नैक्सट देखो 17वां क्वेश्चन, एक बेलन की ऊंचाई इसके अर्ध व्यास के बराबर है, कहते पासवीं सतह के खेत्रफलों का अनुपात पता करो। ये भी अपने अनुपात ही पता करना है। उस तो पहले अपन 16 क्वेश्चन ही रेज करना पैना, आप 16 क्वेश्चन ही रेज कर लेने, है ना। देखो देखो 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन पढ़ो बेटे। ऊंचाई है जी अर्ध व्यास की है बराबर है ना। तो
आर मतलब की है आर है जिहड़ा वो किस दे बराबर है एच दे बराबर है 17th क्वेश्चन दे विच आर है जिहड़ा वो किस दे बराबर है एच दे बराबर है आर बराबर एच है तो किसका खेत्रफल का अनुपात पता करना है पासवीं सतह के खेत्रफल का अनुपात कर लो एक बेलन की उचाई इसके अर्धव्यास के बराबर है इसके पासवीं सतह के खेत्रफल का आयतन नाल अनुपात पता करो लो पासवीं सतह के खेत्रफल कितना होंगे बेलन का 2 पाई आर एच नीचे की लिखांगे बेटे आप आयतन आयतन का की फार्मूला होंगे पाई आर स्केयर एच ठीक है हुण पाई दे नाल पाई कट दो पहला तो खत्म इसकी कहानी ठीक है हुण आप लिखो 2 आर मल्टीप्लाई देखो मैं पहला लिखिया आर किस दे बराबर है एच दे बराबर है तो एच नूं भी आपां की लिख दिए आर ही लिख दिए नीचे देखो आर स्केयर तो हैगा ही है एच नूं भी की लिख दिए बेटे आर ही लिख दिए देखो आर आ ऊपर आर मल्टीप्लाई आर आर स्केयर बन गया तो ये आर स्केयर नाल कैंसल हो गया अपने को की रह गया ऊपर 2 रह गया नीचे एक आर रहेगी ਇਹਦਾ मतलब ਕਿਹੜਾ ऑप्शन आएगा अपना ए ऑप्शन भी राइट है बी सी ऑप्शन भी राइट है डी ऑप्शन भी राइट है देखो 3 ऑप्शन है ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 2 अनुपात आर पे है ए सी ते डी ਇਹਦਾ मतलब क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ कोई मिस्टेक है ठीक है तो ए सी ते डी तीनों ऑप्शन सेम दिते हुए है यही इसका आंसर आना है ठीक है बेटे नेक्स्ट देखो नेक्स्ट टॉपिक आ गया अपना शंकु ਕਿਹੜੀ ਦੋ ਪਸਾਰੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਤੇ ਸ਼ੰਕੂ ਬਣਦਾ ਹੈ त्रिभुज इसका आंसर आएगा त्रिभुज ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ त्रिभुज ਨੂੰ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਨਾ रोटेट करांगे तो शंकु बनेगा नैक्सट शंकु के आधार का अर्ध व्यास अपन दिता हुआ है तो तिरछी उचाई दी हुई है यदि पासवीं सतह का खेत्रफल पता करना है 19वां क्वेश्चन देखो शंकु की पासवीं सतह का खेत्रफल का फार्मूला की होंगे पासवीं मतलब कर्व सरफेस एरिया गोल वाला हिस्सा पासवीं सतह का खेत्रफल किस बराबर होंगे बेटे पाई आर एल एल की होंगी है इसकी स्लैंट हाइट होंगी है तिरछी उचाई देखो मैं इधर तुहानूं बना के दिखानी है ये हो गया अपना शंकु ठीक है ये जी इसकी टेढ़ी वाली उचाई है ना ये वाली इनू कहते हैं तिरछी उचाई तो हम इतने पाई की जगह पुट करो बेटा 22/7 मल्टीप्लाई अर्धव्यास अपना है 10.5 एल अपन दी हुई है 10 सिंपलीफाई कर लो 22/7 मल्टीप्लाई यदा डेसीमल हटा दो 105/10 बन गया मल्टीप्लाई 10 है देखो 10 नाल 10 कट गया 7 नाल 105 कट दो 15 7 105 होंगे तो 22 नू 15 नाल मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा अपने को 15 दूना 30 15 30 3 33 330 सेंटीमीटर स्केयर आंसर आ गया इसका लेकिन आई थिंक ये कोई भी ऑप्शन 330 नहीं है 15 दूना 30 30 ते 3 33 हाँ जी यही राइट आंसर आ रहेगा 22/7 अर्धव्यास अपन चेक कर लेने 10.5 तिरछी उचाई अपन दी हुई है 10 है ना तो 10 नाल 10 अपना कैंसिल हो गया 15 7 105 15 30 3 33 हाँ जी कोई भी राइट ऑप्शन नहीं है बेटे तो इसका आंसर मैं तुहानूं नोट करवाता तुसीं सारे राइट डाउन कर लो ई ऑप्शन लिख के ना इत्थे ई ऑप्शन लिख के 330 सेंटीमीटर स्केयर कर लो इत्थे ठीक है नैक्सट किहड़े सूत्र नाल एक शंकु की तिरछी उचाई पता की जा सकती है एल पता करने का की फार्मूला देखो अगर ना दी होवे ए ऑप्शन है आर स्केयर प्लस एच स्केयर का रूट आर स्केयर प्लस एच स्केयर का रूट नैक्सट समान आधार वाले ते उचाई वाले एक बेलन के आयतन ते शंकु के आयतन विच की संबंध है देखो मैं तुहानूं दिखानी हाँ बेलन का आयतन है जिहड़ा ਉਹਦਾ फार्मूला ਹੁੰਦਾ पाई आर स्केयर एच ਤੇ शंकु का वॉल्यूम है ਜਿਹੜਾ शंकु का आयतन है ਉਹਦਾ फार्मूला ਹੁੰਦਾ अपने को 1/3 पाई आर स्केयर एच देखो फार्मूला सेम है सिर्फ अगे की लग गया 1/3 ਇਹਦਾ मतलब की है कि 3 शंकु मिला के एक बेलन बनता है अगर उन्होंने अर्धव्यास की उचाई है जी बराबर हो तो हम इत्थे चेक कर लो बेलन का आयतन है जोड़ा और शंकु के आयतन का तो 1/3 है नहीं गा बल्कि शंकु का आयतन है जोड़ा और वेलन के आयतन का आ वेलन का आयतन है ना वेलन के आयतन का 1/3 है तो अपना केड़ा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन नैक्सट 21वां क्वेश्चन देखो बेटे 21वें की अपने को एक शंकु की तिरछी उचाई दी हुई है तिरछी उचाई मतलब एल दी हुई है यह एल है यह एच है
क्रमवार 13 ਤੇ 12 ਮੀਨਸ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ L ਹੈ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ H ਹੈ। ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ L ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ h² plus r² ਦਾ रूट। ठीक है, तो आप सिंपलीफाई कर दो। देखो L पता करना आप नहीं सॉरी L तो अपन दिता होया 13 बराबर H कितना अपना 12 का स्केयर प्लस R का स्केयर इज द रूट। आ रूट इधरों हटाने वास्ते दूसरी साइड से जाके की बन जाएगा बेटा स्केयर। तो 13 का स्केयर किस बराबर हो गया 12 का स्केयर प्लस R स्केयर। 13 का स्केयर कितना होंगे 169। आ 12 का स्केयर इधर आके की हो जाएगा माइनस कितना होंगे 144। इधर आर स्केयर है गया इन्हों की माइनस कर दो कितना आ गया 25 बराबर आर स्केयर। तो आर कितना आ गया 25 का रूट मीनस 5 सेंटीमीटर। तो इज द राइट आंसर क्या आ गया अपना बी ऑप्शन। नैक्सट 22 सम पूजा 5 समय कहते 12 समय तो 13 समय समकोण त्रिभुज ਨੂੰ 12 ਸਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੇਟੇ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਖੜਵੀਂ ਭੁਜਾ ਮਤਲਬ ਲੰਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 12 ਸਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ h ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ 13 ਸਮ ਕੀ ਹੋਗੀ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਭੁਜਾ ਦੇਖੋ ਆ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਕੋਣੀ त्रिभुज ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸਮਕੋਣੀ त्रिभुज है ना। तो जी आ सब तो वड्डी भुजा होएगी ये कितनी होएगी 13 सेंटीमीटर। ये 12 होगी तो आ नीचे वाला कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यदा मतलब कि आपां नूं 5 सेंटीमीटर की अपने को अर्ध व्यास 12 की है एच है तो 13 की है एल है। हुण आपां चैक करना है इस तरह बने कोण कोण मतलब शंकु शंकु का आयतन वॉल्यूम कढ़ना है। ठीक है, तो वॉल्यूम का फार्मूला लिख लें आप पाई सॉरी वॉल्यूम का फार्मूला है इसका 1/3 पाई आर स्केयर एच। देखो ऑप्शन देखो सारे पाई 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 पे है मतलब आप पाई की वैल्यू नहीं भरनी हैगी इस सवाल है ना। तो 1/3 पाई आर की जगह देखो कि लिखी आप 5 है ना 5 का स्केयर कितना होंगे 25 होंगे मैं सीधा ही लिख रही हाँ। एच की जगह कितना लिखांगे बेटे 12 3 नाल 12 कट दो कितना आ गया 4 25 4 नाल मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 100 नाल की लिखोगे पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो कि ऑप्शन आ गया अपने को सी ऑप्शन 100 सेंटीमीटर 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी ये पाई है। नैक्सट एक शंकु ते एक बेलन का अर्ध व्यास बराबर है कहते इन्हों के आयतन का अनुपात दसो। तो ईजी या क्वेश्चन है देखो शंकु ते बेलन का अर्ध व्यास की है दोनों का बराबर है आयतन का अनुपात कढ़ना आप। चलो करते हैं आप शंकु का आयतन की होंगे अपने को अनुपात कढ़ लो कितना है शंकु का आयतन की है 1/3 पाई आर स्केयर एच। तो बेलन का आयतन कितना बेटे पाई आर स्केयर एच। ठीक है, आ सारा ये की हो गया कैंसिल हो गया की रह गया कला 1/3 रह गया। तो अपने को अनुपात की आ गया बी ऑप्शन 1/3। ठीक है जी। नैक्सट ये क्वेश्चन 23 सीगा। ठीक है, नैक्सट एक जोकर की टोपी लंब चक्करी शंकु के रूप में देखो टोपी बनी भी हुई अपने को है ना। ये आधार का अर्ध व्यास आ नीचे वाले आधार कहते हैं आधार का अर्ध व्यास 7 सेंटीमीटर दिता होया। उचाई कहते यदी सीधी उचाई यदी उचाई कितनी है। ठीक है 24 सेंटीमीटर। तो 5 टोपियां बनाने लई शीट दसो कितनी चाहिए है। खेत्रफल कढ़ना आप ध्यान नाल देखो बेटे जोकर की आ जी टोपी है ये जो गत्ता है जो कागज़ है वह कितने लग्या होया ये सिर्फ आ वाले गोल वाले हिस्से ते हेठा तो नहीं लगेगा। जे हेठा लगेगा फिर तुम टोपी को सिर पर पाओगे कि है ना। तो इसलिए आप इतने शंकु की कढ़ांगे वक्र सतह कढ़ांगे कर्व सरफेस एरिया वक्र सतह का खेत्रफल वक्र सतह का खेत्रफल वक्र सतह के खेत्रफल का फार्मूला पाई आर एल। लेकिन इतने ध्यान नाल देखो अर्ध व्यास दिता ते एच दी हुई है एल तो है ही नहीं तो अपन पहला एल कढ़नी पएगी। एल कढ़ने वास्ते एच का स्केयर प्लस आर का स्केयर मीनस 24 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर इज द रूट। 24 का स्केयर होंगे 576 7 का स्केयर 49। ठीक है, तो दोनों ऐड करके कितना बनेगा 625। तो अपने को एल कितनी हैगी 25 सेंटीमीटर। हुण नैक्सट देखो हुण आप वक्र सतह का खेत्रफल कढ़ लो पाई की वैल्यू 22/7 अर्ध व्यास आ गया अपना 7 सम तो एल कितनी अपनी 25 7 नाल 7 कट दो
22 ਨੂੰ 25 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਦੇਖੋ 25 दूना 50, 25 दूना 50 ਤੇ 5 55, 550 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪੁੱਛਿਆ? 5 ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 550 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। 5 ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ? 550 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਦੇਖੋ 0 5 5 25, 25 ਤੇ 2 27, 2750 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ? ਏ ਆਪਸ਼ਨ 2750 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਗੋਲੇ ਤੇ ਅਰਧਗੋਲੇ ਦਾ, ਸਫੀਅਰ ਐਂਡ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਠੋਸ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੋਲਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੋਲਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਭੁਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਧੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜੀ ਦੋ ਪਸਾਰੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਤੇ ਗੋਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਧਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਗੋਲਾ ਬਣੇਗਾ, ਸਫੀਅਰ ਬਣੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 7 ਸਮ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟੇ, ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਰਧ ਗੋਲਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਸਤਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਤਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਗੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਦੋ ਸਤਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਹੋ ਗਈ ਗੋਲ ਵਾਲੀ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹਤੇ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਦੋ ਸਤਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪੂਰੇ ਗੋਲੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ, ਮਤਲਬ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਕੁੱਲ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 3 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ 3 ਗੁਣਾ 22/7 ਗੁਣਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ, 7 ਗੁਣਾ 7 ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, 7 ਨਾਲ 7 ਕੱਢ ਦੋ, ਦੇਖੋ 22 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 3 7 21 ਨਾਲ, 21 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 22 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, 21 दूना 42, 4 42 ਤੇ 4 46, 462, 21 दूना 42, 4 ਹਸਲ 42 ਤੇ 4 46, 462 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੀਨਸ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਭਰੀਏ। 3 ਗੁਣਾ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਮਤਲਬ 7 ਗੁਣਾ 7, ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੇਟੇ, 7 7 49, 3 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 49 ਨਾਲ, 9 3 27, 4 3 12 2 14, 147 ਪਾਈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੀਨਸ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, 462 ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੇ ਵੀ ਆਂਸਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, 147 ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 147 ਪਾਈ। ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੋਲੇ ਦੀ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਵਧੂਗਾ ਜਾਂ ਘਟੂਗਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਇਹਦੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਹੈਗੀ, ਆ ਗੋਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਗੋਲਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਆ ਇਹਦੀ ਗੋਲ ਵਾਲੀ ਸਤਹ, ਬਾਹਰਲੀ ਸਤਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਲੀ ਬਾਹਰਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ। ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਖੇਤਰਫਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟੇ? ਇਸਦਾ ਵਧੂਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਦੀ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 29ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 5544 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਗੋਲੇ ਦੀ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? 55 55 44 5544 किस बराबर हो गया? 4 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर, ठीक है। तो हुण ये सारे नंबर दूसरी साइड ते लै जाओ, तो कितना बन गया अपना? 5544 मल्टीप्लाई 7/22
मल्टीप्लाई 1/4, इधरले पासे अपने को आर स्केयर रह गया, कैंसिल कर दो बेटे। तो 22 नाल कैंसिल करांगे, 11 ते कट लो है ना, 11 दूना 22, ये बन जाएगा अपने को कैंसिल करके 504, ये आएगा, नीचे लिख देनी मैं 504, ठीक है। तो हुण इहनूं फेर कट लो, 2 ते कट्टिया जांदा है, 2 ते कट के कितना आएगा ये 25 2 252, 252, 4 ते भी कट्टिया जाता है, 6 चौका 24, 4 ते 12, 63। तो मतलब आर स्केयर अपने को आ गया 63 मल्टीप्लाई 7, 7 या 21, 42 ते 2 44। तो फिर बेटा आर कितना आएगा, कोई दस सकता है, 441 का वर्गमूल, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस द राइट आंसर की आ गया बी ऑप्शन। देखो इतने लिखा हुआ 5 बराबर 3.14, लेकिन अगर तुम 3.14 लैके कटोगे ना तो इसका आंसर नहीं आएगा। तो यह 22.7 नाल ही सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है जी। नैक्सट एक गोले ਅਤੇ अर्धगोले का अर्धव्यास बराबर है, कहते इन्हों की सतह के खेत्रफल का अनुपात की है। पहला गोला लिखिया तो गोले की सतह का खेत्रफल दसो की होंगे 4 पाई आर स्केयर। तो फिर अर्धगोले की सतह का खेत्रफल, इन्होंने इतने कला सतह का खेत्रफल लिखा हुआ बेटे। देखो अगर कला सतह का खेत्रफल लिखा होंगे ना तो आप कुल सतह लें, वकर सतह नहीं लेंगे, ठीक है। वकर के लिए वकर लिखा होएगा, कर्व लिखा होएगा। तो अर्धगोले की कुल सतह का खेत्रफल कितना होंगे अपने को 3 पाई आर स्केयर। अर्धव्यास दोनों के बराबर है तो ये कट गया, तो कितनी रेशो आ गई 4:3, सी ऑप्शन। अगला हवा भरन के एक गुब्बारे का अर्धव्यास कहते 7 सेंटीमीटर तो 14 सेंटीमीटर हो गया। दोनों मामलों में गुब्बारे की सतह के खेत्रफल का अनुपात कड्डो। चलो कढ़ लें, आप अनुपात कढ़ लें। पहला कितना आएगा खेत्रफल 4 पाई, अर्धव्यास कितना है 7 का स्केयर। फिर बाद में कितना हो गया 4 पाई 14 का स्केयर बेटा, ठीक है। 4 पाई नाल 4 पाई कट गया, देखो ऊपर 7 गुना 7 है, नीचे 14 मल्टीप्लाई 14 है, कट दो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो कितना आएगा बेटा इसका आंसर, ऊपर कितना आ गया 1 आ गया, नीचे कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया अपना 1:4, डी ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट दो गोलियां के अर्धव्यास का अनुपात दिता हुआ है 2:3, कहते आयतन का अनुपात कितना होएगा। देखो दो गोले है, मतलब पहले का अर्धव्यास R1 है, दूजे का R2 है, इन्हों का आयतन अपन कितना दिता हुआ है 2:3। हुण जिहड़े गोले हैं इन्हों के आयतन का अनुपात कढ़ना आपां। पहले गोले का आयतन की हो गया 4/3 पाई R1 का क्यूब, दूजे गोले का अनुपात की हो गया, सॉरी दूजे गोले का आयतन की हो गया 4/3 पाई R2 का क्यूब। देखो 4/3 पाई तो कैंसिल हो गया, बचा कि R1/R2 का क्यूब है ना। इनू की लिख सकते हो तुसी R1/R2 अंदर करके पावर 3। तो ये आपां पता है कितनी दी हुई, आपां 2/3 दी हुई है, मतलब 2/3 की पावर 3। तो कितना आएगा तुहाडे कोल 8/27। तो अपना केड़ा आंसर आ गया सी ऑप्शन, राइट आंसर आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 33 नंबर। अर्धगोले की पासवी सतह का खेत्रफल दिता होया 277.2, इसका अर्धव्यास अपन ने पता करना है। यदि पासवी सतह के खेत्रफल का फार्मूला अपने को 2 पाई आर स्केयर, ये किसके बराबर हो गया 277.2 दे, है ना। तो अपने को आर स्केयर कितना आ गया 277.2 डिवाइड बाय 2 पाई। इन्हू सिंपलीफाई करना आप, देखो ये बन गया अपने को 2772, नीचे 10 लग गया गुना 2, तो जो नीचे पाई है वह की लगावे आप नीचे 22, ऊपर की लग जाएगा 7 लग जाएगा। हुण आप इसनूं कैंसल करना, देखो कैंसल 22 के टेबल पर होंगे 22 एकम 22, 5 बचे 22 दूना 44, फिर बचे अपने को 13, तो फिर ये बन गया अपने को 22 छिका 132, 126 बन गया। 126 भी 2 नाल कैंसल कर दो, देखो कितना आ गया 63। तो अपने को ऊपर आ गया 63 मल्टीप्लाई 7
नीचे बचे अपने को 10, तो इन्हू मल्टीप्लाई करोगे देखो कितना आएगा 7 या 21 7 42 2 44 है ना। मीनस अपने को आंसर आ गया 441 बटा 10। तो हम अर्ध व्यास आर कितना आएगा अपने को 441 बटा 10 का रूट मीनस 44.1 का रूट, जो कि अपने को आंसर आएगा 6 पॉइंट समथिंग। तो अपने को 33 का ऑप्शन है जो देखो 1.4 है, सॉरी 1.8 है, देखो 1.8 है, 2.1 है, 2.2 है, तो 1.9 है। इसका मतलब इसका कोई भी ऑप्शन है जो राइट आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि इसका आंसर 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ अगर ये 27.72 होंदा तो यदा पॉइंट इत्थे हुंदा ना 277.2 की जगह ते 27.72 हुंदा तो नीचे 100 बन जाता, तो 100 बन जाता तो 100 का रूट 10 आ जाता, तो यदा रूट अपने को 21 आ जाता, मीनस 2.1 इसका आंसर आ जाता। तो यदा मतलब इत्थे भी ये स्टेटमेंट के कोई प्रॉब्लम है, इसकी स्टेटमेंट 27.72 होनी चाहिए सी, ठीक है, ताही इसका आंसर 2.1 बनेगा। तो हुण तुसीं इसका 44.1 का एग्जैक्ट रूट कढ़ लियो, ठीक है। सारे बच्चे आई थिंक कढ़ना आंदा 44.1 का, आप कढ़ के भी दिखा देनी, चलो मैं 6 36 हो गया, ठीक है। 14 च 6 माइनस किते 8, देखो उपरों ये 0 लगा के 10 लगा लिया आप, फिर 6 का डबल कितना होंगे बेटे 12 होंगे, तो 12 के नाल आप इत्थे डिजिट लगाना है ना, 7 लगावांगे तो अपने को 49 4 14 4 18 नहीं 6 लगेगा, तो अपना यदा मतलब अपना रूट है जो 6.6 दे अप्रोक्सीमेटली आएगा इसका आंसर। अगर आप सेम इस स्टेटमेंट नाल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो अपना आंसर आएगा 6.6 अर्धव्यास। तो ध्यान रखना सारे बच्चों ने 33rd क्वेश्चन का आंसर है जो 6.6 आ रहा है सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। अदरवाइज इसकी स्टेटमेंट के प्रॉब्लम है, डेसीमल में चेंज कर लो, 277 की जगह 27.72 कर लो, तो तुहाडा आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है जी। नैक्सट नैक्सट क्वेश्चन करने तो पहले आपां नूं ये सारा इरेज करना पेगा, देखो आप सारा इरेज कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं आप की लिखा होया है, एक गोलाकार गेंद है, इसते एक सिलेंडरकार बक्से दे विच बिल्कुल फिट की हुई है, दोवां दा घेरा आर है, अर्धव्यास आर है, सिलेंडर की ऊंचाई 2 आर है, सिलेंडर की ऊंचाई देखो बेटे 2 आर है, ऊंचाई मतलब ए वाली ऊंचाई, ए वाली सीधी वाली, ठीक है, ये कितनी है 2 आर। तो कहते आयतन गोले का आयतन सिलेंडर के आयतन नाल अनुपात की होगा, गोले के आयतन का सिलेंडर के आयतन नाल की अनुपात होगा। तो गोले के आयतन का की फार्मूला होंगे अपने को 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस अर्धव्यास देखो दोनों का की है बेटा सेम है, ये देखो इत्थे मैं तुम दिखानी हाँ, ऊंचाई दसी है ना आपां, तो आपां पता है गोले का तो सारे पासियां तो जो व्यास है वो की होंगे सेम होंगे, तो आह वाला व्यास भी गोले का की हो गया 2 आर हो गया, तो फिर गोले का इन्ना अर्धव्यास है कितना हो गया आर हो गया, ये की है बेलन का भी अर्धव्यास है आर, ठीक है। तो हुण आपां ने की कढ़ना आयतन कढ़ना दोनों का, गोले का आयतन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ अनुपात किहदा कढ़ना है सिलेंडर के आयतन का, सिलेंडर का आयतन, ठीक है। दोनों का अर्धव्यास बराबर है तो ऊंचाई भी बराबर है। गोले के आयतन का फार्मूला की है 4/3 पाई आर क्यूब, तो सिलेंडर के आयतन का फार्मूला होंगे पाई आर स्केयर एच, देखो पाई नाल तो पाई कट दो, ठीक है। हुण जिहड़ा आह एच है, एच की जगह तो ऊंचाई की जगह तो देखो आपने कितना लिखना है, तुहानूं हुणे दसी ऊंचाई 2 आर है, तो आप की लिखांगे 4/3 आर क्यूब नीचे आर स्केयर इंटू एच की जगह तो लिख दो 2 आर। देखो आर स्केयर नूं नीचे आर नाल मल्टीप्लाई करांगे आर क्यूब बनेगा, तो आर क्यूब के नाल आर क्यूब अपना कैंसल हो गया, तो अपने को की आया 4/3 नीचे कितना अपने को 2 है, तो 2 के नाल बेटा 4 भी कट दो, 2 दूनी 4,
तो कितना बन गया अपने को ऊपर 2 नीचे 3, मतलब अपना अनुपात कितना आ गया 2:3। किहड़ा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया अपना बी ऑप्शन। नैक्सट देखो 35वां क्वेश्चन। 35वें ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 21 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿਆਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਵਾਲੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। अर्ध व्यास अपन दिता हुआ है, सॉरी व्यास दिता हुआ 21 सेंटीमीटर, तो अर्ध व्यास कितना हो गया इसका 21/2, ठीक है 21/2 सेंटीमीटर। की पूछा किन्ने लीटर दुध आ सकता, मतलब कैपेसिटी पूछी है, वॉल्यूम कढ़ना है। तो अर्ध गोले का वॉल्यूम कितना हो गया 2/3 पाई r³। सिंपलीफाई करांगे आप इन्हू 2/3 पाई की जगह पर 22/7। अर्ध व्यास कितना अपना 21/2 गुना 21/2 गुना 21/2, 3 बार लिखांगे क्योंकि पावर 3 है ना। तो देखो 3 7 21, फिर 7 नाल 7 भी कैंसल कर दो, आ 2 नाल 2 भी कैंसल कर दो, 2 नूं 22 नाल भी कट दो बेटे 11 आ गया। तो अपने को ऊपर आंसर कितना आ गया 11 रह गया, एक 21 रह गया, एक होर 21 रह गया, ठीक है। तो इन्हां दी मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया अपने को 231 मल्टीप्लाई 21, फिर मल्टीप्लाई कर दो 21 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ तो 231 बन गया, ठीक है बेटा। नैक्सट है 21 एकम 21, 21 × 63 ਤੇ 2 65, 6 आ गया, 21 × 42 ਤੇ 6 48, 4851। कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। आप चेक कर लें, 2 ਨਾਲ 2 कैंसिल हो गया, 7 या 21 कैंसिल हो गया। अच्छा इनू डिवाइड हले अपने को नीचे 2 भी रह गया सी, देखो 1 2 भी रह गया नीचे, ठीक है। तो हम इन्हें 2 नाल डिवाइड कर दो, 481 नूं 2 नाल आपां डिवाइड करना बेटा, कितना आएगा अपने को 2425.5। लेकिन आपां नूं ये क्वेश्चन है जिहड़ा लीटर्स दे विच पुछिया है ना, लीटर्स दे विच, तां इहनूं आपां किहदे नाल डिवाइड करांगे 1000 नाल। तो जिहड़ा अपना डेसीमल है 3 अखर अगे शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा 2.4255 लीटर। तो देखो किहड़ा ऑप्शन अपना राइट आंसर आ गया। इसका कलर चेंज कर दें आप ताकि तुहानूं दिख जे, ठीक है। ए ऑप्शन 35 का, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे। नैक्सट है अपना इन्हां विच किहड़ा ठोस अते इसकी सतह के खेत्रफल के सूत्र विच विकार सही मेल नहीं खाता। देखो इस आप करांगे, इन्होंने फार्मूले अपन दिते हुए हैं, फार्मूले चेक करने आप किहड़े ऑप्शन का फार्मूला सही नहीं हैगा, तो चेक कर लेने आप। सब तो पहला ऑप्शन अपन दिता होएगा कि कितना दिता होया अपन सब तो पहला ऑप्शन अपन दिता हुआ है गोले की पास की सतह का खेत्रफल 4πr², ये सही है अपना। गोले की कुल सतह का खेत्रफल है, सॉरी बेलन की कुल सतह का खेत्रफल 2πr/h+r, ये भी सही है। कान की कुल सतह का खेत्रफल 6a है, ये गलत है। इसका मतलब इसका राइट आंसर की है सी ऑप्शन। नैक्सट लास्ट क्वेश्चन है अपना, लास्ट क्वेश्चन की है देखो, चंद्रमा का व्यास कहते धरती के व्यास का लगभग 1/4 है। तो धरती के आयतन ते चंद्रमा के आयतन की भिन्न पता करो, मतलब वही अपना सेम अनुपात वाला क्वेश्चन फेर है बेटा, ठीक है। तो आप धरती के आयतन ते चंद्रमा के आयतन की भिन्न बनानी है। देखो चंद्रमा तो धरती अपनी वड्डी है ना, तो धरती का व्यास मान लो, धरती का व्यास कितना x, तो अर्ध व्यास कितना हो गया x/2। फिर चंद का व्यास कितना हो गया, चंद का व्यास धरती के व्यास का 1/4 है। चंद का व्यास कहते यदा 1/4 हिस्सा, मतलब x/4। फिर चंद का अर्ध व्यास कितना हो गया बेटा, इनू r1 लिख लो। अर्ध व्यास x/4 का अद्धा हिस्सा, मतलब 2 नाल भाग करनी है, कितना हो गया x/8। तो हुण इन्हां दोनों का आयतन कढ लो। धरती का आयतन है तो दोनों गोले ही है ना, तो दोनों के आयतन का फार्मूला की लगूगा 4/3 πr³। तो अनुपात कढ लो। उपर आप किहदा आयतन लगाने, धरती का, नीचे किहदा लगाना आपने चंद का आयतन, ठीक है। तो की लिखांगे आप, देखो धरती का 4/3 पाई
ਅਰਧਵਿਆਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟੇ x/2 ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ x/2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਨੀਚੇ ਚੰਦ ਦਾ 4/3 ਪਾਈ x/2 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ ਦਾ ਅਰਧਵਿਆਸ ਆਪਾਂ x/8 ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ 4/3 ਨਾਲ 4/3 ਤੇ ਪਾਈ ਨਾਲ ਪਾਈ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟੇ x³/8 ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪਲਟ ਜਾਏਗਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 8 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ 8 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 512 ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ x³ ਨਾਲ x³ ਕੱਢ ਦੋ 8 ਨਾਲ 512 ਕੱਢ ਦੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 64। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ 64:1। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ 64:1 ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਉੱਪਰ 64 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਕੰਨ ਦਾ ਆਇਤਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਕੰਨ ਦਾ ਆਇਤਨ LBH ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ LBH ਮਤਲਬ ਕੰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਉਚਾਈ ਸਭ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ D ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ D ਨਾਲ, A ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਲਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2πr h+r। ਗੋਲੇ ਦਾ ਆਇਤਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4/3 πr³। ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦਾ ਆਇਤਨ ਅੱਧਾ ਗੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ 2/3 πr³। ਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਪਾਸਵੀਂ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ πr। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਲਿਡ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗੀਆਂ ਗੋਲਾ, ਅਰਧਗੋਲਾ, ਸ਼ੰਕੂ, ਵੇਲਨ, ਘਣ, ਘਨਾਭ ਸਭ ਦੇ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।